alif bip 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 alif dab dab alif dab dab bip یا واو میم یا قاف لام کاف نون فا یا کاف واو نون. ہاں یہ ایسے ورڈ ایک ورڈ پڑھتے ہیں جس کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایسے بچے جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے, اور میں ہوں جو پاکستان میں پہلی دفعہ ایسے ڈیف اینڈ میوٹ بچوں کو سائن لینگویج میں قرآن پاک پڑھاتی ہوں. میں جتنا شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کروں اتنا ہی کم. ہوئے ناظرین, یہ عراق سے قرآن پاک آیا ہے. یہ میری ویڈیوز دیکھ کے ایک میں ان کو اپنا استاد ہی کہوں گی, عراق سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے یہ گفٹ بھیجا, کیونکہ پاکستان میں تو نہیں ہے نا, کیونکہ پڑھاتا ہی کوئی نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے, آیت ختم ہو گئی تو ہم نے سلائڈ کر دیا. اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم. ہم اکیلے ہی یہ کام کر رہے ہیں, اس کے ساتھ میں آن لائن کام کرتی ہوں ماشاءاللہ پاکستان کے, پورے پاکستان سے, مختلف سٹی سے, اور 3 بچے میرے آؤٹ آف کنٹری کے بھی ہیں ماشاءاللہ. میرے ساتھ میری بڑی بہن ہے جنہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا, پھر انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, میں نے بھی سیکھا, انہوں نے بھی سیکھا. اس کے ساتھ میری سسٹر ایک اور ہیں, ساتھ میرے بھائی ہیں. میں نے اپنی فیملی کو انکلوڈ کیا اور ہم 4 بہن بھائی مل کے یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو میں نے موبائل سے ہی پڑھانا سٹارٹ کیا تھا, بہت مشکل تھا ایک ہاتھ میں موبائل پکڑ کے اور کافی گھنٹے تک بیٹھے رہنا. اب تو الحمدللہ میں 100+ بچوں کو پڑھاتی ہوں اور 7 آورز بیٹھ کے قرآن پاک کنٹینیوسلی پڑھاتی ہوں. ابھی ماشاءاللہ 100+ بچے ہیں. کس بچے کو آپ مطلب قرآن کی تعلیم دے رہی ہیں؟ چھوٹے, جو میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے نا, وہ 3.5 سال کی بیٹی ہے. 3.5 سال. میں نے کبھی فیس کے لیے فورس نہیں کیا کہ میں نے اتنی ہی فیس لینی ہے. میں بتاتی ہوں کہ میرا یہ والا ایک پیکیج ہے, آپ اس میں مجھے بتا دیں گروپ فیس یہ ہے, پرائیویٹ فیس یہ ہے. لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ نہیں میم ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یا ہمارا یہ شوق ہے کہ ہمارے بچے قرآن پاک پڑھیں, تو میں جتنے وہ کہتے ہیں میں نے کبھی کسی چیز سے فورس نہیں کیا کہ آپ مجھے اتنے ہی پیسے دیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو بالکل بھی پیسے نہیں ہیں, اب ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیں پھر؟ ہاں, تو میں فی سبیل اللہ بھی پڑھا رہی ہوں. بہت سارے بچے پڑھتے ہیں جو فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں. جو سب سے بڑا لڑکا ہے ابھی جو پڑھ رہا ہے وہ 36 سال کا لڑکا ہے. ہاں جی, وہ ماشاء اللہ سے, ہاں اتنی بڑی ایج کی بھی, اتنی چھوٹی ایج کے بھی اور بڑی ایج کے بھی بچے جو ہے نا وہ ماشاء اللہ سے قرآن پاک لاسٹ 45 سال کی ایج تک بھی آپ سے کوئی رابطہ کر سکتا ہے. 80 سال کی عمر تک بھی کوئی رابطہ کر سکتا ہے قرآن پاک کے لیے. السلام علیکم ناظرین و سامعین, میں ہوں فیضان علی اور آج میں موجود ہوں ضلع قصور میں, اور مصطفیٰ آباد دلیانی جو ضلع قصور کی بازو لاہور اور ضلع قصور کے سینٹر میں ہے, وہاں پہ آج ایک ایسی بات آپ کو بتانے لگا ہوں, آپ بھی سنیں گے تو آپ کے فیس پہ مسکراہٹ آ جائے گی. قرآن کی تعلیم, دنیاوی تعلیم تو لوگ لیتے ہیں, لیکن قرآن کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو آپ کی آخرت سنوار سکتی ہے. آپ قرآن پڑھیں, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. لیکن یہ ایک اور انٹرسٹنگ بات اس کے اندر ہے کہ وہ بچے جو اسپیشل بچے ہیں, جو بول نہیں سکتے, ان کو قرآن کی تعلیم کس طرح دی جاتی ہے؟ ان کو قرآن کی تعلیم جو ہے وہ اشاروں کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. اور اشارے کس طرح ہیں, اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ضرور ہے. اور اس ویڈیو کے اندر یہ جو مس فروا میرے ساتھ موجود ہے, یہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہی ہیں اور بچوں کو آن لائن کلاسز بھی دیتی ہیں. ان کی کوئی زیادہ فیس نہیں ہے اور کوئی زیادہ یہ پیسے لے کے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہی. اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بچوں کو اچھے سے جو ہے وہ کلاسز بھی دی جائیں گی, اور یہ آن لائن کلاسز بھی ہے. ان کے ساتھ رابطہ کریں. اور ابھی آپ کے سامنے ساری تفصیلات ابھی بتائیں گی کون کون سے بچے جو ہے وہ آپ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا ہے, کہ آپ بہت مصروفیات کے بعد اپنے ٹائم دیا. تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ہے معاملات کتنی دیر سے کر رہے ہیں, بچوں کو کتنی دیر سے آپ تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں؟ 4 سال ہو گئے ہیں مجھے قرآن پاک پڑھاتے ہوئے. ڈیف اینڈ میوٹ بچے, یعنی ایسے بچے جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے, اور میں ہوں جو پاکستان میں پہلی دفعہ ایسے ڈیف اینڈ میوٹ بچوں کو سائن لینگویج میں قرآن پاک پڑھاتی ہوں. یہ آپ مطلب 4 سال سے اپنی مدد آپ تحت شروع کیا ہے یا کوئی تنظیم بنائی ہے پہلے؟ نہیں, اپنی مدد آپ تحت کیا ہے یہ کام. جی اسٹارٹ کیا تھا 4 سال سے. اس کے آپ کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, یا آپ کو کوئی جگہ ایسی دیتے ہیں جہاں پہ آپ مطلب پورے پاکستان سے بچوں کو پڑھائیں؟ کوئی ایسا کوئی سین ہے؟
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अकेली हूँ जो इस पे काम कर रही हूँ। मेरे साथ मुझे फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है, मेरी सिस्टर मुझे सपोर्ट कर रही है, भाई सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी बाहर से कोई बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा है इस पर। कुछ होता ही है, कोई जैसे कि नुमाइंदे होते हैं, मतलब कोई भी MP MNs जो होते हैं वो देखते हैं कि यार हमारे इलाके में एक ख़तून जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या उसकी हेल्प करनी चाहिए? किसी ने आज तक मतलब रब्ता भी नहीं किया? नहीं, एक बंदे से बात हुई थी लेकिन उसने हमें सपोर्ट नहीं किया है, हमारे इधर के मुस्तफाबाद के बंदे से, लेकिन सपोर्ट नहीं किया हमें ना इसमें। तो अभी क्या मतलब सिस्टम चल रहा है आपका? आपने कोई यहाँ पे कोई अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ है? इंस्टीट्यूट सच नहीं है क्योंकि मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं, तो कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। तो मैंने आपको पता है कि एक छोटा सा कस्बा है जिसमें मैंने ये काम स्टार्ट किया है। एक छोटी सी फैमिली है, मिडिल क्लास हम लोग हैं, उसमें हमने ये काम स्टार्ट किया है। तो अभी तो हम अकेले ही ये काम कर रहे हैं। इसके साथ मैं ऑनलाइन काम करती हूँ माशाल्लाह, पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से, मुख्तलिफ सिटी से, और 3 बच्चे मेरे आउट ऑफ कंट्री के भी हैं माशाल्लाह। बाहर के हैं? किस कंट्री से? UAE के हैं और इटली के हैं। क्या बात है, मतलब आप कुरान की तालीम देते हैं। बच्चे जो मतलब बोल नहीं सकते उनको फिर किस तरह आप बताती हैं? हमारी ऑडियंस को भी तक बताएं, और बताएंगे आप, मतलब देखेंगे कोई वीडियो आपसे, हो सकता है रब्ता करके वो आपके पास भी आएँ। जी सर, मैं ज़रूर बताऊंगी। ये हमारा कुरान पाक है। एक्चुअली सर मैंने मिस्र से सीखा था। मेरे साथ मेरी बड़ी बहन है जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैंने भी सीखा, उन्होंने भी सीखा। इसके साथ मेरी सिस्टर एक और हैं, साथ मेरे भाई हैं। मैंने अपनी फैमिली को इंक्लूड किया और हम 4 बहन भाई मिल के ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये कुरान पाक है। हाँ जी, ये हमारा कुरान पाक है। ये इराक से कुरान पाक आया है। ये मेरी वीडियोस देख के मैं उनको अपना उस्ताद ही कहूँगी। इराक से उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा, क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं है ना, क्योंकि पढ़ाता ही कोई नहीं है। तो इस चीज़ का हमारे पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यकीन करें कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एक ये हमारा कुरान पाक है जो हमें इराक से आया था, और ये जो एक जो हमने सीखा था मिस्र से, ये हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था ये कुरान पाक। ये देखिए। अच्छा, इसमें जो कुरान के वर्ड्स होते हैं, इसमें तो कुछ मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, ये क्या है, ये बताएं ज़रा। देखें, जैसे बिस्मिल्लाह का साइन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो अलिफ लाम हा मीम दाल, ये हम पढ़ते हैं नाजरा। हम नाजरा कुरान पढ़ाते हैं। ठीक है, देखें आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, आयत ख़त्म हो गई तो हमने स्लाइड कर दिया। उसके बाद फिर अर्रहमान निर्रहीम, ये ऐसे है। ये हम ये सारा माशाल्लाह मेरे बच्चे, ये तो सर मेरे पास कुरान पाक है ना, सिर्फ ये 2 नुस्खे हैं मेरे पास, लेकिन जो मेरे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, वो जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं वो उस पे पढ़ते हैं। अच्छा, मतलब आप ये सिखाया हुआ है, आप इससे देख के मतलब पढ़ाती हैं बच्चों को? सीखा हुआ है, मुझे इस पे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सीखा हुआ है। ये गिफ्ट है ना, तो मैंने इसको अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, और जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं वो जो कुरान पाक हम पढ़ते हैं उसी पे से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो बच्चा आए, कितने बच्चे थे आपके पास जो पढ़ने के लिए आते थे? मैंने स्टार्ट किया था फी सबीलिल्लाह, 6 महीने तक मैं फी सबीलिल्लाह पढ़ाती थी। कितने बच्चे थे उस टाइम? तकरीबन 14 बच्चे। 14 बच्चे थे। मैनेजमेंट कैसे करनी पड़ती थी? ज़ाहिर सी बात है, घर है, बिजली का बिल, पढ़ाना, मैनेजमेंट कैसा होता? सोलर भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी, कुछ मतलब आपको पता है हमारे इश्यूज़ क्या थे। तो मैंने मोबाइल से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था। बहुत मुश्किल था एक हाथ में मोबाइल पकड़ के और काफ़ी घंटे तक बैठे रहना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100+ बच्चों को पढ़ाती हूँ और 7 आवर्स बैठ के कुरान पाक कंटिन्यूसली पढ़ाती हूँ। हाँ जी। अभी जो है 14 बच्चे, अभी कितने बच्चे हैं? अभी माशाल्लाह 100+ बच्चे हैं। 100+ बच्चे हैं। 100+ जो है वो मुस्तफाबाद के ही हैं, या इधर ही आते हैं आपके पास, या किसी और सिटी से? नहीं, हर सिटी से माशाल्लाह, कराची, सियालकोट के बहुत सारे बच्चे हैं, हैदराबाद से बच्चे हैं सर, लाहौर के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी ये सिटीज़ से हैं और कंट्री से भी है। मैंने आपको बताया UAE से और इटली से। हाँ जी। अच्छा, किस किस बच्चे को आप मतलब कुरान की तालीम दे रही हैं? छोटे, जो मेरा सबसे छोटा बच्चा है ना, वो 3.5 साल की बेटी है। 3.5 साल, वो क्या बात है। नाज़रीन, ये वर्ड्स बहुत हमारे लिए छोटा है, लेकिन ये देखने को बहुत बड़ा है। ये 3.5 साल का बच्चा कुरान की तालीम ले रहा है। यार, आप भी बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों को जो है वो मतलब स्कूल्स की तालीम देना, दुनियावी तालीम से बाहर आएँ, कुरान की तालीम दे बच्चों को। हमारे किसी भी कोई पढ़ा लिखा बंदा है ना, मैं अपनी जो है वो शॉर्टी से बात करता हूँ कि कोई भी पढ़ा लिखा बंदा है, आप उससे सूरत कौसर सुन लो, या सूरत नास सुन लो,
या कोई और सूरत सुन लो, वो पहले तो एक दफ़ा सोचेगा मैं क्या करने लगा हूँ, आपको पता है ना। और अभी देखें वो किस तरह इशारे के साथ बता रहे हैं वर्ड्स, और किस तरह पढ़ाया जाता है कुरान। आप लोग भी अपने बच्चों को तालीम दे कुरान की। अच्छा, अभी 100 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो क्या हमारा जो है ज़िला कसूर की तहसीलों से बच्चे हैं? कराची आपने बता दिया, ऑफ टू कंट्री बता दिया, और किस किस सिटी से? और सियालकोट से, और उसके बाद जेहलम से, फिर ऐसे काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं। तो हमारे मुस्तफ़ाबाद के भी बच्चे हैं, जो हमारे एरिया के बच्चे हैं वो घर आते हैं, मैं उनसे फ़ीस नहीं लेती, वो फ़ीस सबीलिल्लाह है। और बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो पे नहीं कर सकते ना, तो मैंने स्टार्ट असल में सर ये किया था, लेकिन आज मेरे पास जो मैंने स्टार्ट किया था ना वो एक भी बच्चा नहीं है, क्योंकि मैं मतलब पे नहीं करते ना तो पता ही नहीं होता, तो वो कहते हैं कि अच्छा पढ़ लिया तो पढ़ लिया। लेकिन अभी जो बच्चे पे कर रहे हैं ना, मैंने बहुत कम फीस, और कई बच्चे फीस नहीं भी देते, और कुछ प्राइवेट भी पढ़ना चाहते हैं, वो हमें कहते हैं कि हमने प्राइवेट पढ़ना, आप जितनी फीस कहेंगे हम उसके लिए पे कर देंगे। प्राइवेट पढ़ने वाले बच्चे स्टार्ट ग्रुप्स में होते, मेरे ग्रुप में हैं और प्राइवेट बच्चे भी हैं, ठीक है। जो ग्रुप में, एक ग्रुप में 4 से 5 बच्चे होते हैं। जैसे बच्चों को मतलब सबक याद कराया जाता है, साथ वीडियो दी जाती है, वो अगले दिन के लिए सबक याद करते हैं। हाँ, वो जैसे ज्वाइन करते जाते हैं, अपनी बारी के हिसाब से सबक सुनाते जाते हैं। मुश्किलात कितनी आई? मतलब आप तो फी सबिलिल्लाह पहले पढ़ाती रही हैं, बच्चे 14 मतलब आपके पास आए, स्टार्ट किया, खर्चे, ये सारा अफोर्ड कैसे करते थे आप? सर अफोर्ड बड़ा ही मुश्किल रहा है, फैमिली सपोर्ट करती रही है। इसमें मेरा भाई है नुमान, उसने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है इस चीज़ में ना। तो मुश्किल आती रही, ज़ाहिर है लाइट का इशू होता था, अंधेरे में बैठ के क्लास लेनी, फिर इसी ने मुझे सोलर भी लगवा के दिया मतलब अपने पे। तो जब मैंने मतलब फ्री स्टार्ट किया था तो वो बच्चे आज नहीं हैं, क्योंकि वो मतलब समझा ही नहीं उन्होंने कि ये ज़रूरी है। लेकिन अब जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, मेरा टिकटॉक चैनल है माशाल्लाह से, वो इतना अच्छा चल रहा है, ठीक है, उस पे से ना लोग देख के आ रहे हैं। टिकटॉक अकाउंट्स का नाम भी आपने बता दिया, ये नाम भी बता दें ज़रा, आवाम को भी पता चल जाए। सूतुल हक कुरान अकेडमी फॉर डेफ, ठीक है। नाज़रीन बता रहे हैं जो टिकटॉक अकाउंट्स है उनके ऊपर भी इनकी वीडियोस लगती हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई औरत आपसे रब्ता करती है, कहती है कि मैं हूँ ज़िला कसूर से, या मैं हूँ सियालकोट से, या मैं हूँ ननकाना साहब से, या मैं हूँ साहिवाल से, तो आप उनको अगर कहती हैं कि हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, फिर क्या जो है वो कितनी फ़ीस वैसे आपकी कितनी है? सर जो प्राइवेट बच्चे हैं ना, वो मतलब जो मेरी मतलब बाहर के मुल्क में है, जो आउट ऑफ कंट्री से, वो 15,000 प्लस भी दे देते हैं, ठीक है। जो हमारे पाकिस्तान के प्राइवेट बच्चे हैं वो 5,000, और जो सबसे कम है कोई 500 भी दे देता है, 800 भी दे देता है, जितना कोई कहता है। मैंने कभी फ़ीस के लिए फ़ोर्स नहीं किया कि मैंने इतनी ही फ़ीस लेनी है। मैं बताती हूँ कि मेरा ये वाला एक पैकेज है, आप उसमें मुझे बता दें ग्रुप फ़ीस ये है, प्राइवेट फ़ीस ये है। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि नहीं मैम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमारा ये शौक़ है कि हमारे बच्चे कुरान पाक पढ़ें, तो मैं जितने वो कहते हैं, मैंने कभी किसी चीज़ से फ़ोर्स नहीं किया कि आप मुझे इतने ही पैसे दें। अगर कोई कहता है कि हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आप हमारे बच्चों को तालीम दे दें फिर? हाँ, तो मैं फ़ीस बिल्ला भी पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जो फ़ीस बिल्ला पढ़ते हैं। अभी जिस बच्चे ने अभी पाकिस्तान में पहली दफ़ा कुरान पाक पढ़ा है, उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे ना मतलब मेरे पास पैसे नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं ज़रूर फ़ीस दूँगी, भला मैं थोड़ी सी दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी मेहनत करती हैं। उन्होंने मुझे 500 से स्टार्ट किया था, जब तक उसने कुरान पाक कंप्लीट किया तो उन्होंने 800 कर दिया था। तो मतलब मैंने इंसिस्ट नहीं किया किसी चीज़ से भी कभी कि आप मुझे इतने पैसे दें या इतने पैसे दें, वो कोई मसला नहीं है। आप जितने अफोर्ड कर सकते हैं आप पे कर सकते हैं। ऐसा कॉन्टैक्ट जिससे आपसे आवाम रब्ता कर सके? 031557493030। पंजाबी में भी बता दें, क्योंकि कोई नहीं भी पढ़ा लिखा होता बेचारा। 031557493030। नाज़रीन सामाइन, ये वीडियो बनाने का मकसद है हमें जो है लोगों को अवेयरनेस देना है। लोगों को दिल में ये भी पता होना चाहिए कि कुरान की तालीम लेना कितना ज़रूरी है। और ये जो कॉन्टैक्ट बता रही हैं, इनसे रब्ता करने की कोशिश करें, आपको तालीम मिलेगी। आपको आज तक जो है आपकी सिटी के लोगों ने कितना मतलब जो है ताउन किया है, अप्रोच किया या ताउन किया? ताउन किया है। ताउन तो कोई सच नहीं हुआ। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हमारे इधर सिटी में मैंने बैनर्स लगवाए, मतलब खुद इस चीज़ के लिए स्कूल्स के आगे बैनर्स लगवाए। ये कसूर सिटी है वहाँ बैनर लगवाए, अपने मुस्तफ़ाबाद में बैनर्स लगवाए कि लोगों को पता चले। और लोग आज भी इधर मुस्तफ़ाबाद से, ये सरियाली रोड से किसी ने रब्ता किया है कि हमारे बच्चे ने कुरान पाक पढ़ना है। वो तब जब मैंने देखा था तो तब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, अब वो 5 साल की होगी, अब मुझे उसको कुरान पाक पढ़ाना है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कितनी फ़ीस लेती हैं? मैंने कहा आप मुस्तफ़ाबाद में रहते हैं, आप यहाँ आएँ और यहाँ आके पढ़ें, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। जो बच्चे मेरे पास घर पढ़ने आते हैं मैंने उनसे फ़ीस नहीं ली कभी भी। अच्छा, एक और बात, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है,
کہ یہ سوچنے والی بھی بات ہے کہ کوئی بندہ ہے وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ فار ایگزامپل میری 23 سال عمر ہے, میں اسپیشل بچہ ہوں, تو میں نے تعلیم نہیں لی قرآن کی, میں پڑھا ہی نہیں ہوں, تو اگر میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیا میں بھی تعلیم حاصل کرتا ہوں؟ سر میرے پاس جو سب سے مطلب وہ بالکل ان پڑھ عورت ہے جس نے پڑھنا, جو پڑھتی ہے میرے سے 45 سال کی عورت ہے, اور جو لڑکا ہے جو سب سے بڑا لڑکا ہے ابھی جو پڑھ رہا ہے وہ 36 سال کا لڑکا ہے. ہاں جی, وہ ماشاء اللہ سے, ہاں اتنی بڑی ایج کی بھی, اتنی چھوٹی ایج کے بھی اور بڑی ایج کے بھی بچے جو ہے نا وہ ماشاء اللہ سے قرآن پاک لاسٹ 45 سال کی ایج تک بھی آپ سے کوئی رابطہ کر سکتا ہے, 80 سال کی عمر تک بھی کوئی رابطہ کر سکتا ہے قرآن پاک کے لیے, اسپیشل بچہ کوئی بھی. اتنی خوشی ہو رہی ہے ابھی؟ میں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس چیز کے لیے, اور میرا دلی سکون ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب مطلب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مطلب میں اپنے میرے ابو جی نہیں ہیں, اور میرے ابو جی نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہے اس میں, اللہ تعالیٰ, اور میری ماما نے, میرے ابو مطلب بہت خوش ہوتے تھے. انہوں نے کہنا, ابو مجھے کہتے تھے بہورا, تو میں نے بیٹھے ہونا کلاس لے لینا, ابو نے آنا بورے کلاس لے لے, بار بار کہنا نا اس طرح کہ کلاس لے لے. بڑا خوش ہوتے تھے, پاس بیٹھنا, دیکھنا, کہنا یہ کیسے پڑھتا ہے, یہ کیسے پڑھتا ہے. پھر مطلب یہ میرے بچے جو پڑھنے آتے ہیں ان سے اتنا پیار کرتے تھے. بس ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارا سر یہ عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم میرے مطلب ماں باپ ہمارے نہیں رہیں گے تو جو ہم قرآن پاک پڑھیں گے یا ہماری جو بھی اچھے اعمال ہوں گے ان کا ثواب ماں باپ تک جائے گا, اور صرف اولاد کا جاتا ہے اور کسی کا بھی نہیں. کوئی بھی اللہ ان صرف مغفرت کی دعا کر سکتا ہے نا سر. تو ابھی نا ایک جو میرے ساتھ نا ایک بندے نے رابطہ کیا, تو وہ کہتا ہے کہ میڈم ہماری نا سارے بچے ہی ڈیف ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ مطلب میں جب مر جاؤں گا تو کوئی بھی نہیں میرے پیچھے قرآن پاک پڑھنے والا ہوگا. تو کہتا ہے میں اتنا خوش ہوں, میں نے اللہ کے آگے سجدہ کیا اور اتنا شکر گزاری کی کہ اللہ تیرا میں کیسے شکر ادا کروں کہ مجھے اب اتنا سکون ہے کہ اب میں مر جاؤں گا تو میرے پیچھے پڑھنے والے بچے قرآن پاک ہوں گے. الحمدللہ یہ بڑا ہی ایک دلی سکون ہے. یقین کریں پیرنٹس اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں سر. ابھی میرا گروپ بنا ہے نا, جو بچے جیسے جیسے ایڈ ہوتے جاتے ہیں وہ ایک گروپ میں پھر کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے میں اس میں شیئر کرتی ہوں. کچھ دن پہلے نا کسی نے ایسے نا بہت زیادہ ایسے موٹیویٹ کیا اور بہت سپورٹ کیا اس چیز میں لیے, اپریشیٹ کیا. کہتے کہ میڈم ہم نا اتنے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا آپ دے دی, اور آپ اتنی, تو میں اپنی تعریف نہیں کر رہی ہے, انہوں نے بولا, انہوں نے کہا کہ آپ مطلب اتنا سپورٹ کرتی ہیں ہر چیز میں. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مل جائے گا. ہم نے اتنا کچھ سوچا کہ کہاں سے ڈھونڈا, لیکن کبھی کوئی نہیں ملا. لیکن آپ ملی ہمیں. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں قرآن ٹیچر. سر ایک دفعہ میں نے ایک نا آیت پڑھی تھی, حدیث تھی وہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, اور وہ اس نے نا یہاں اور یہاں گھر کیا ہوا تھا. تو آج میں الحمدللہ اتنی مطمئن ہونا کہ میں ابھی بھی چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں بھی پڑھ رہے نا, تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آئیں اور سب پڑھیں. کوئی نہیں فی دے سکتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں فی سبیل اللہ بھی پڑھاتی ہوں. یہ صرف اسپیشل بچوں کے لیے یا کوئی اور بھی محلے سے بچہ پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں؟ میرے آتے ہیں محلے سے بھی. پہلے اسٹارٹ جب میں نے کیا تھا نا, میری ایک بچی ہے, میں آپ کو ملواتی ہوں اسے, اسی سے ہی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اس کے بہن بھائی پڑھنے آتے تھے قرآن پاک, تو وہ نا ساتھ آتی تھی تو کہتی تھی کہ مجھے بھی پڑھاؤ. تو سر مجھے تو آتا نہیں تھا, میں اس کو کہتی تھی تھوڑی سی لپسنگ کرو. اس کی تھوڑی سی وہ مطلب کرتی ہے لپسنگ نا, تھوڑی سی اس کی ہے اسپیچ. تو میں نے اس کو بولا کہ تم اسپیچ کرو, تو کہتی ہے نہیں مجھ سے تو بولا نہیں جاتا, وہ کتنا اچھا پڑھتی ہے اور میرے سے نہیں بولا جاتا. پھر ہم نے اسی سے ہی اسٹیپ لیا تھا, سوچا کہ کیسے کریں. میری بڑی بہن ہے, اسٹارٹ اصل میں ہم دونوں نے ڈسکس کیا, انہوں نے کیا, پھر انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور میں الحمدللہ, وہ ماشاء اللہ سے پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں, پی ایچ ڈی کر رہی ہیں, اور وہ اسپیشل بھی ہیں, ان کی وہ ٹانگوں سے معذور ہے. ہاں وہ آپ نے شاید دیکھی ہوں گی, میڈم شگفتہ خانم نام ہے ان کا, دیکھی ہوں گی آپ نے. وہ میری بہن ہے, تو وہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ اس چیز میں سپورٹ کیا, اور پھر میں نے اپنے ساتھ اپنی ٹیم اٹیچ کی. کسی باہر کے بندے کو نہیں, بہت سارے لوگوں کو میں نے اٹیچ کرنے کی کوشش کی. سر لوگ اتنے برے ہیں کہ وہ مجھے کٹ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں اس سے نہ پڑھنا, میں پڑھاتا ہوں. میرے بچے چھین لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نا جب آپ اپنے ساتھ لائل نہیں نہ ہوتے تو آپ کسی کے ساتھ بھی لائل نہیں ہو سکتے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو سکھاؤں گی, اور میرے ساتھ میری بہن ہے فائزہ, اور میرے ساتھ نعمان بھائی ماشاءاللہ یہ میرے ساتھ مل کے پڑھا رہے ہیں, کیونکہ اب اسٹرینتھ زیادہ ہو گیا تو میرے لیے تو مینیج کرنا بہت مشکل ہو گیا. اور اس 4 سال میں نے اپنا پوسچر بھی خراب کیا, خود کو بیمار کیا, بیک بون کو اسٹریٹ کیا, اور یہ ساری چیزیں. لیکن میں چھوڑوں گی نہیں انشاءاللہ. میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ میں ضرور قرآن پاک ہی پڑھاتی رہوں گی. کتنے بچے جو ہے آپ سے سیکھ چکے ہیں؟ نہیں ابھی صرف ایک بچہ سیکھا, باقی تقریباً 20 سے 25 بچے ہیں جن کا آلموسٹ کلیئر ہونے والا ہے. 25ویں سپارے پہ ہے, کوئی 23ویں سپارے پہ ہے, کوئی 28ویں سپارے پہ ہے, وہ بس ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری آڈینس کو کوئی ایسا بچہ ہو جو بھی موجود آپ کے پاس, کوئی 3-4 اپنے شاگرد جو ہیں وہ اسپیشل بچے, اور وہ بھی دکھائیں. ناظرین و سامعین,
प्रोग्राम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। वो स्पेशल बच्चे जिनका बहुत बेताबी से इंतज़ार था, जिनको हमारी आवाम भी देखे और जो कुरान की तालीम ले रहे हैं। और अभी महक है जो सबसे पहले जो फरवा हैं उनके पास आई और पढ़ने लग गई। और फिर जो इनका नाम है वो जिस तरह बुलाते हैं, बच्चों के स्पेशल नाम रखे हुए हैं, किस तरह बुलवा रहे हैं, किस तरह उनको मुखातिब किया जाता है, ये अभी जो है वो फरवा करके भी दिखाएंगी और उनको बुलवाएंगे और फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। ज़रा बुलवाएं। कुरान पढ़ के दिखाओ, दिखाओ, सब देखना चाहते हैं कि तुम कुरान पाक कैसे पढ़ती हो। आवाज़ के साथ। कौन से पारे में? 19वें सुपारे पे है माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह, 19 सुपारे पढ़नी है। अली इस पे देख। अच्छा, ये 19 सपारे माशाल्लाह पढ़ लिए हैं इसने, तो ये सबसे पहली वो बच्ची है जिसने आपसे तालीम हासिल की थी। बिल्कुल, ये सबसे पहली बच्ची है। इसने एक्चुअली बीच में स्किप कर दिया था। अच्छा। इसीलिए ये पीछे है। इससे पीछे मतलब बच्चे जो इसके बाद पढ़ने वाले वो तो कंप्लीट कर चुके हैं। कौन से इशारे से आप मुखातिब करते हैं? ऐसे म्याऊ, आजा। इसका नाम महक है ना, तो कहती है मेरा नाम महक नहीं है, मुझे म्याऊ कहा करो, मुझे म्याऊ कह के बुलाया करो। ये मतलब सभी बच्चों के ये अलग अलग नाम रखे हुए हैं आपने? इसमें कोई ऐसा सिंबल होता है जैसे मतलब इसको वो उसको लगता है कि मेरी मोटी मोटी आंखें हैं और मैं म्याऊ जैसी, मैं कैट जैसी हूँ। और ये थोड़ा सा इसका नाक का है तो इसको हम यूं करके नाक का इशारा करते हैं, ठीक है। और ये जो महक है इसकी आंखें प्यारी हैं तो हम इसको यूं करके बुलाते हैं। हाँ, ऐसे वाली, सॉरी ये वाली। हाँ, और ये सारी बाकी बच्चे जो ये है, ये हाँ, ये इसका ये है। अच्छा, इसको सबका पता है? ये कहती है कि मैं इन सब की प्रिंसिपल हूँ और उन कहती चलो ये काम करो, चलो इधर आओ, मुझे पढ़ के दिखाओ कि सही पढ़ रहे हो कि खराब पढ़ रहे हो। ये बड़ी है ना सबने, तो ये सबकी प्रिंसिपल बनी हुई है। चलिए नाज़रीन, अभी दूसरे बच्चों की इंट्रो करवाने की कोशिश करते हैं आपके साथ, फिर उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन और सामाइन, अभी बच्ची मारिया जो मुस्तफाबाद ललियानी की स्टूडेंट हैं फरवा की, अभी ये कुरान पाक वो कुरान पाक है जो हम पढ़ते हैं, ये कुछ स्पेशल कुरान पाक नहीं है, ठीक है। और स्पेशल कुरान पाक की वही है जो आप ही को गिफ्ट आया है। और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो आप इशारा से बता रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुरान बोल नहीं सकती? नहीं बोल नहीं सकती हैं। हाँ, स्पेशल बच्चे है ना, वो बता रही है कि अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं कुरान पाक पढ़ना शुरू करूँगी। चलें ज़रा। अच्छा, आप इसको किस तरह मुखातिब कर? इसका है ये वाला, ये इसकी थोड़ा नोज की शेप ऐसी है ना, तो हम इसको यूं कह के बुलाते हैं। तो ये कौन से पारे की आयत पढ़ रही थी? ये 18वें पारे की। 18वें पारे की, मतलब 18 पारे कर लिए, पढ़ लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कौन सी जो है लाइन पढ़ रहे थे, ज़रा वो भी आप दिखा दें और आप भी पढ़ के मतलब बताएं। यौम क़ूलु कुन्ना फयकून क़ौलहुल हक़्क़ु वलहुल मुल्कु यौमा। ऐसे ये मतलब ये सारे बच्चे एक एक वर्ड्स को हम तो ऐसे मिला के पढ़ते हैं ना, ये नहीं पढ़ सकते ना क्योंकि ये बोल नहीं सकते, तो ये पढ़ते हैं या वाओ मीम या काफ लाम काफ नून फा या काफ वाओ नून। हाँ, ये ऐसे वर्ड एक वर्ड पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं माशाल्लाह। अच्छा, अभी आप मरियम साहिबा हैं, वो भी एक माँ है, को क्या मुखातिब करेंगी, क्या कहेंगे उनको? मैम मैंने देखा है, मैम माशाल्लाह
میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے جو لیڈرز آئے ہیں انہوں نے کبھی کیا ہوگا کام دیکھا ہے، لیکن اتنا سپورٹ فیمیلز کو اتنا سپورٹ کر رہی ہیں، ہر چیز میں سپورٹ کر رہی ہے، اور میں سچ میں مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں. تو اب میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں نا اس کام میں سپورٹ کریں. باقی سارے کاموں میں تو کرتی ہیں نا، یہ تو ساری زندگی پھر مطلب جب تک قیامت تک کا ثواب ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ ان کو پڑھانے کے لیے کوئی ہمیں آپ کوئی مطلب فرض کریں کہ آپ آئے ہیں، تو آپ کے تھرو اگر کوئی بھی بچہ آئے گا نا، یہ ثواب آپ کا قیامت تک رہے گا جب بچہ پڑھے گا. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے اس میں کام کریں اور ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم دے، کیونکہ ہم تو نہیں بنا سکتے نا، تو ہمارے لیے یہ کام کریں، ہمیں ایک پلیٹ فارم دیں جس پہ ہم میرے بچے ویزیبل آ کے قرآن پاک پڑھ سکیں. جیسے ایک ادارہ ہوتا ہے، کئی مدرسے بنے ہوئے ہیں، لیکن ایسے بچوں کے لیے مدرسہ نہیں ہے سر. کو مطلب یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ آپ کو کوئی ایسا جگہ بنا دے جہاں پہ آپ بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو مطلب ہاں، ساری زندگی کے لیے وہ بھی ثواب کمائیں. میرا بھی ثواب اور میرا بھی ثواب، اور جتنے بھی ماشاءاللہ سے آپ کی سپورٹ سے ہوں گے تو پھر آپ کا بھی ثواب انشاءاللہ. ابھی تک کوئی بھی ایسا نظام نہیں جو گھر میں پڑھا رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی صرف گھر میں پڑھا رہی ہوں اور آن لائن پڑھا رہی ہوں. آپ کے تو ادھر ملک احمد خان ہیں جو پنجاب اسمبلی اسپیکر اس ٹائم ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ ضلع قصور کا مانے تانی شخصیت ہیں، کیا کہیں گے ان کو؟ یہی کہوں گی کہ سر تھوڑا سا نظر کرم ان بچوں پہ کریں، اور پلیز ہمیں سپورٹ کریں اس چیز میں کہ ہمیں بھی ایک ادارہ ملے اور ہم اس پہ کام کریں، ٹھیک ہے. اور صوت الحق قرآن اکیڈمی ایک جو جس کا نام ابھی بھی بہت زیادہ ہے اور مزید ہونا چاہیے نا. یہ آپ نے رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے؟ سر ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے یہاں پہ. سر ہم نے کوشش کی تھی پاکستان میں بہت ساری کہ ہمیں کوئی اس چیز میں سپورٹ کرے کہ ہمیں رجسٹر کر کے دیں، تو وہ کہتے ہیں جب بول ہی نہیں سکتے تو قرآن کیا پڑھیں گے. سر یہ کہتے ہیں آگے سے؟ سر یہ کہتے ہیں جب بول ہی نہیں سکتے تو قرآن کیسے پڑھیں گے. تو جب یہ باقی ساری ہمارے ساتھ کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، یہ اسکول جاتے ہیں، یہ کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھنا. کیوں نہیں پڑھنا سر میں تو سائن لینگویج میں قرآن پاک کے ساتھ میں نے روزمرہ پڑھی جانے والی دعائیں اور نماز بھی سائن لینگویج کے ساتھ یاد کرائی ہوئی اپنے بچوں کو ماشاءاللہ. تو لاسٹ پہ پیغام دینا چاہتی ہیں کسی بچوں کی والدہ کو، بچوں کو یا بچوں کے بہن بھائیوں کو پیغام دینا چاہتی ہیں؟ بالکل دوں گی. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو میں کہتی ہوں کہ آپ ان کی محرومی کو ان کی طاقت بنائیں اور مل کے ان کو قرآن کا راستہ دکھائیں. یہ نہیں رہنے چاہیے جیسے یہ بہت ضروری ہے قرآن. سر باقی ساری ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں لیکن قرآن پاک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں. کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ استقامت دے، اور جیسے میں 4 سال سے ابھی تک کوشش کر رہی ہوں اور میں مزید بھی انشاءاللہ اس پہ قائم و دائم رہوں. ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کہ مریم صاحبہ دیکھ کے کوئی اچھا اقدام کر سکیں، کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ بنا سکیں، کوئی تا قیامت تک وہ رہے. اور ایسے کئی معصوم بچے ہیں، کئی ایسے ضلع سے ہیں، کئی ایسی تحصیلوں سے ہیں جو آ کے ان سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں. یہ نہیں کہ قرآن پاک کی آن لائن تعلیم، قرآن کی تعلیم دینا، یہاں پہ بھی کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بن سکتا ہے. کوئی اگر یہ کوئی صاحب جو ہے جس کو اللہ پاک نے اتنا زیادہ دیا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت دولت ہے کہ میں کسی چیز پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ان سے رابطہ کرے، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے اور پھر اس کو ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائے، وہ خود ہی زیر نگرانی رکھے لیکن ان بچوں کا خیال ہو سکے. دیکھیں ذرا ظاہری سی بات ہے کہ گھر میں بچوں کو پڑھانا، پھر 100 بچوں کو کلاس دینا، یہ جو ہے وہ تھوڑا سا کنفرٹیبل ہے. لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کے توسل سے حساب پروگرام کی ٹیم یہ ریکویسٹ کرتی ہے، مریم صاحبہ یا کسی اور ہمارے پاکستان میں بہت بہت زیادہ پیسے والے لوگ ہیں، اس ضلع قصور میں بھی بہت پیسے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرے اور پھر ان کو کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ بنا کر دے جو بچے اسپیشل قرآن کی تعلیم لے سکیں، یہ بچے پڑھ سکیں، پھر آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. اگر آپ گنہگار ہیں تو آپ کی آخرت ضرور سنور جائے گی. اور کوئی لاسٹ پہ خاص پیغام ہو آپ کا دینا چاہیں ہمارے چینل کے توسل سے، آپ دے سکتی ہیں. ہاں، یہ فیضان صاحب نے میرے سے رابطہ کیا تھا میری ویڈیو دیکھ کے ٹک ٹاک سے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہ آئے ہیں اور انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میرا پیغام باقی لوگوں تک بھی جانا چاہیے. تو سب سے پہلے تھینک یو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، اور بس یہی کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے اور ہم قرآن پاک پڑھیں انشاءاللہ. آپ کے ساتھ کوئی اور ٹیچر بھی ہے جو بات کرنا چاہتی ہیں، بات کر لیں گی؟ ضلع قصور میں ایک شخصیت ہے، ان کا نام ہے زبیر خان. وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت سی جو ہے فلاحی کام میں حصہ لیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فلاحی کام ہے جو اسپیشل بچوں کو جو بول نہیں سکتے، جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے، صرف اشارے سے قرآن پاک جو وہ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ویڈیو میں تو ان کو بھی پیغام دوں گا، وہ بہت اچھے شخصیت سے تعلق ہے ان کا اور بہت اچھی شخصیت رکھتے ہیں.
ज़िला कसूर में। और आप क्या कहना चाहती हैं? ज़ुबैर जो है वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ज़ुबैर साहब हैं, वो ज़िला कसूर में अच्छी तंजीमों के साथ वो मुंसलिक हैं, तो आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्या कहेंगे? ज़ुबैर सर, अगर आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर हमें इस चीज़ में सपोर्ट करें, ये तो बहुत अच्छा काम है। जैसे सर ने बताया कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आपके ही इलाके में या आपके ही ज़िले में हम रह के तो आप हमसे दूर हैं, तो फिर ये तो फिर बात ना हो। आप मतलब बताएं उनको आप क्या काम कर रही हैं इस जगह पे बैठ के, अपने जो है वो अपनी जगह का नाम बताएं, क्या मतलब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या कर रही हैं, ये थोड़ा सा बताएं। हाँ जी सर, हम मेरी एकेडमी है कुरान सोतुल हक कुरान एकेडमी फॉर डेफ। ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों को मैं साइन लैंग्वेज में कुरान पाक पढ़ा रही हूँ। और मैं पाकिस्तान की वाहिद लड़की हूँ जो पाकिस्तान में रह के ये साइन लैंग्वेज में डेफ एंड म्यूट बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ। तो आप ज़रूर हमें इसमें हेल्प आउट करें जितना भी हो सकता है। जैसे भी ये एक अच्छा काम है, ज़ाहिर है आपके लिए निजात का ज़रिया भी बनेगा इंशाल्लाह, तो आप हमें ज़रूर इसमें सपोर्ट करें। चलिए जी ज़ुबैर साहब, अगर आप हमारी को वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये ख़ुसूसी हमारे चैनल के तवस्सुल से पैगाम है कि ये स्पेशल बच्चों के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है, स्कूल की तालीम लोग देते हैं लेकिन कुरान की तालीम दे रहे हैं। ये जो फैमिली मेरे साथ मौजूद है, ये सिर्फ वो स्पेशल बच्चों को जो बोल नहीं सकते, सिर्फ इशारे के साथ कुरान पाक को पढ़ते हैं। और इशारा किस तरह है वो वीडियो साथ चल रही है, आप देख भी लीजिएगा सर, लेकिन आप इनकी हेल्प ज़रूर करें। ये बहुत अच्छा, ये आखिरत संवारने वाला काम है। और ये इनकी बहन है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहना चाहती हैं और कब से इनके साथ वो मिली हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका बहना? मेरा नाम फ़ायज़ा नूर है। आप ही बहन, बंदा जो है वो कहता है कि बहन हम जो है वो बच्चों को स्कूल खोल लेते हैं, आपने क्यों ऐसा सोचा कि कुरान की तालीम दे लें? सबसे पहले मेरी दोनों बहनों ने कुरान पाक को पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरी सबसे बड़ी बाजी शगुफ्ता खानम और फिर मिस फरवा सरवर, इन्होंने कुरान पाक पढ़ाना स्टार्ट किया। तो बस हम देखते थे इनको कि ये इतनी स्ट्रगल करती हैं, तो माशाल्लाह से बच्चों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप भी कुरान पाक मुझसे सीखें। मैंने बेसिकली इनसे सीखा हुआ है, तो फिर आगे से मैं भी डेफ एंड म्यूट बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने इंसिस्ट किया इस बात पे कि आपको मैडम ने बताया कि हमारे अब्बू जी फौत हो चुके हैं, तो उनके लिए तो निजात का ज़रिया यही है कि उनके बच्चे कोई नेक अमल कर जाएं। तो फिर बस मेरा यही बेसिकली समझे कि कॉज था कि मैं भी इसमें थोड़ी सी अपनी जोन सी एफ़र्ट करूं और इसका सवाब हमारे अब्बू जी को पहुंचे और हम दुनिया में भी लोगों के लिए अच्छा काम कर सकें जो हमारे लिए आखिरत में निजात का ज़रिया बने। हमारे पंजाब के वज़ीर तालीम पंजाब है राना सिकंदर हयात साहब, उनका भी ज़िला कसूर से ताल्लुक़ पतों किस है। आप वो लोगों को बड़ी हेल्प करते हैं या लोगों को वो बड़ा अच्छा इक़दाम देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं उनको ये कहूँगी कि अभी तो जैसे हम एक बहुत छोटे लेवल पे रह के तो ये एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जिसमें कुछ लोगों को पता है, जैसे मैडम का टिकटॉक चैनल चलता है तो उसके थ्रू लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जैसे आपके चैनल के तवज्जो से जो लोग देख रहे हैं या वो ये मैसेज को सुन रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये जो आप जिन सर का नाम बता रहे हैं कि राना सिकंदर हयात साहब, वो देखते हैं ये वीडियो, उनको भी ये पैगाम पहुंचेगा। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये बच्चों के लिए ज़रूर थोड़ी सी एफ़र्ट करें कि ये तो ज़ाहिर है आखिरत में निजात का ज़रिया है। मैं कहती हूँ कि दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है, और एक मेंटली सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी इंसान को खुद भी हो जाती है कि यार मैं किसी एक अच्छे काम में हूँ, तो शायद यही मेरे लिए जो है ना वो अल्लाह ताला की रज़ा का सबब बन जाए। बहनों को मुश्किलात आती है तो बहन बताती है मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, बताती थी बहन? जी जी बिल्कुल बताती हैं। मैडम ने आपको बताया कि इनकी बैकबोन का इशू हो गया था, बहुत 7 आवर्स कौन सा कंटिन्यू सिटिंग पे इनको, अभी मेडिकल इनका चल रहा है, इनको मेडिकल इशू, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अभी तक कुरान पाक को जो सा ना वो स्किप नहीं किया। और इनके साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं, भाई सपोर्ट कर रहे हैं साथ में। ये डेफ एंड म्यूट बच्चों को पढ़ाने के अलावा जो बच्चे नॉर्मल होते हैं, सुन सकते हैं कुरान पाक को नॉर्मल लोगों की तरह, तो माशाल्लाह ये हाफिज़ कुरान है, तो ये भी बच्चों को पढ़ाते हैं। नाज़रीन, आपने एक मिसाल सुनी होती है कि भरा दियां बावां होंदे ने, लेकिन यहाँ पे तो आप लोग देखें कि बहन की बाजू बनी हुई है यार। ये बहुत जो है एक बहुत बड़ी बात है। वो एक और भी मिसाल है कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। आप भी इस नेकी का हिस्सा लें, इस नेकी में हिस्सा लें, कतरे कतरे से दरिया बना दें आप लोग भी। अगर ख़ास तौर पे मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत पर्सनैलिटीज़, बहुत पैसे वाले लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो यार खुदा का वास्ता है कि अगर कोई वीडियो देख भी रहा है ना, तो अपनी दुनिया और आखिरत संवार लें।
बच्चों को तालीम दिलवाएं, उन बच्चों को जो बोल नहीं सकते। देखें, वो कुरान पढ़ेगा, सवाब तो आपको ही मिलेगा, वो कुरान सीखेगा, सवाब को तो आपको ही मिलेगा। वो जितनी देर तक कुरान को पढ़ता रहेगा, या वो आगे भी बताएगा कि मैं इस जगह से सीखा हूँ, वो नाम आपका ही आएगा कि यार उस जगह पे तो उस फलां बंदे ने जो है वो हिस्सा लिया था। कोई ऐसे भी हैं कि जो इस नेकी में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन वो बैक पे मतलब शो नहीं होना चाहते, वो भी उनके लिए भी ये इनका कॉन्टेक्ट भी हाजिर है और ये भी हाजिर है। अभी नुमान भाई हैं, ये जो कुरान के हाफिज भी हैं, अब इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और आपको सारी तफसीलात बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नुमान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। नुमान भाई भाइयों की बाजू होते हैं, लेकिन आप तो बहनों की बाजू बन के बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बड़ा एक अच्छा इक़दाम है। स्पोर्ट करना आजकल के दौर में ना, सोशल मीडिया पे सपोर्ट करना वो अच्छा नहीं समझा जाता, तो आपने अपनी बहन को सपोर्ट किया, एक मुकाम पे पहुंचाया, तो आप कितना खुश हैं इस बात से? भैया अल्हम्दुलिल्लाह, लोग सपोर्ट करते हैं, कोई टिकटॉक पे लाख तरह के कॉन्टैक्ट बनते हैं, पर ये कॉन्टैक्ट कोई भी नहीं है, इसके साथ का कंटेंट हो ही नहीं सकता। अभी तक है नहीं, पर अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया और सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम थे। आपके पास सिर्फ घर में ही बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह है, कोई और जगह नहीं है? नहीं, अभी उस बारे में सोचा नहीं, हम ज़्यादा हमारा फोकस जौन सा ना वो स्पेशल बच्चों पे है। चलिए नाज़रीन, नुमान भाई की भी आपने बात सुनी है, और अभी माँ जो है कितनी निराली होती है, माँ ने कितना सपोर्ट किया है बच्चों को, जो है अभी माँ से बात करने की कोशिश करते हैं। मिस फरवा और उसके बाद उनके बच्चे जवान हुए, बच्चों को कुरान पे लगाया, बच्चों को पढ़ाया सिखाया, ये सारे मामलात अब माँ से जानने की कोशिश करते हैं। माँ तो कहते हैं ना कि सबकी जो है वो एक जन्नत है, तो जन्नत की भी बात सुनते हैं, क्या कहती हैं वो, बच्चों को किस तरह इस स्टेज पे पहुंचाया और खिदमत खलक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र बेटे। माँ को जन्नत समझा जाता है, तो माँ क्या कहेंगी आप कि आपके बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कैसी खुशी मिलती है आपको ये सब कुछ देखते हुए? ये माशाल्लाह मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है कि मेरी बड़ी बेटी है शगुफ्ता, उसके बाद मेरे 2 बेटे हैं, और फिर ये फ़ायज़ा, ये फरवा और नुमान। तो माशाल्लाह ये जो मेरे 4 बच्चे हैं ना, एक शगुफ्ता, और इन्होंने माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे फ़ख्र है इन पे, बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि यहाँ के माहौल बहुत सही नहीं था। फिर मैं इनको, छोटे छोटे थे, मैं भी लाहौर की थी, लेकिन मुझे ये माहौल पसंद नहीं आया, मैं इनको छोटे छोटे लाहौर ले गई। वहाँ इनकी तालीम जो मैंने कि बहुत लोगों ने बातें की कि क्यों घर छोड़ के गई है, क्यों, लेकिन जब ये माशाल्लाह कामयाब हो गए, फिर मैं इनको वापस ले आई अपने घर में। फिर मैंने इस घर को बनाया, तो फिर इनको घर में लेके आई, और माशाल्लाह आज ये इस काबिल हैं कि मैं जितना शुक्र अल्लाह ताला का अदा करूँ उतना ही कम। ओए होए नाज़रीन, ये क्या तासुरात हैं। ये मम्मा ने, हमारे अब्बू ने हमें इतना सपोर्ट किया। सब कहते थे ਧੀਆਂ ਨੂੰ कौन पढ़ाता है, ਧੀਆਂ ਨੂੰ नहीं पढ़ाना, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ कमाइयाँ खानी है। यकीन करें सर, जिधर हमारे मामा और अब्बू खड़े हुए ना, वहाँ कोई नहीं खड़ा हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक मुकाम पे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी चीज़ पे उन्होंने कहा कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं। अब्बू ने कहा पुत्र मैं जो होएगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ परेशान ਹੁੰਦੀਆਂ जी, तो वो नहीं दिया। तो अभी माशाल्लाह आज हम जो कुछ भी हैं, हम अपने मामा अब्बू की वजह से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ जी अभी कितनी खुशी हो रही है, खुशी से आंसू आपके नहीं थामे जा रहे? बहुत ज़्यादा खुशी है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सलामत रखे, और ये ऐसे ही दुनियावी तालीम तो जो होती है ना वो तो हर कोई करता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का कि मेरे बच्चे ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा तौफीक दे, कामयाबियाँ भी दे। हाँ, अल्लाह पाक इनको कामयाबियाँ दे। तो अभी थोड़ा अरसा पहले बहुत बड़े सदमे से गुजरी मेरी शौहर, दुनिया से चले गए, तो बस अब मेरा इनको, ये मेरा सहारा है, मैं इनका सहारा, ये अल्लाह का सहारा है। बस जो है मिस को देखते हैं पढ़ाते हुए, फ़ख्र नहीं होता कि बच्ची मेरी कुरान पढ़ा रही है? बहुत ज़्यादा है। ये खुद
माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करती कि मेरी माँ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अब इतनी ये हो गई थी कि मैंने इसको हिम्मत हारने नहीं दी। मैंने कहा बस हिम्मत नहीं हारनी। लोग तो चाहते हैं, कुछ जेलस भी होते हैं बीच में। बच्चों की जो माँ होती है ना, माँ को ये होता है कि मेरी बच्ची अच्छी पढ़ेगी, अच्छी डॉक्टर बन जाएगी, अच्छी टीचर बन जाएगी। आपने क्यों सोचा कि मैं इनको कुरान की तालीम की तरफ लेके जाऊँ? क्योंकि आखिरत का जरिया यही है। हाँ जी, बख्शिश इसी में ही है। अभी देखिए ना, अब बच्चे घर आते हैं पढ़ने के लिए, बाहर नहीं जाना पड़ता, लोगों की नज़रों में नहीं रहना पड़ता, तो माँ तो एक बड़ा अच्छा जज्बा रखती होती है बच्चों के लिए। आंखों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो शुक्र अल्लाह पाक का, जितना शुक्र करें उतना ही कम है। तो मरियम साहिबा भी माँ है, तो माँ को कोई पैगाम देंगी कि बच्चों के लिए अच्छा कोई इकदाम कर दे? हाँ जी। क्या पैगाम देना चाहती हैं? वो भी तो एक पंजाब में कहती है कि मैं माँ का, मरियम साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा। मरियम साहिबा से यही है कि वो थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट करें और उनके लिए कोई इदारे का बंदोबस्त करें, वसीला बने, तो अल्लाह पाक उनको भी सवाब देगा सारी ज़िंदगी के लिए, इनको भी अल्लाह पाक इसका सिला देगा इंशाल्लाह। और बच्चे भी तालीम हासिल करेंगे सारी ज़िंदगी के लिए, उनको भी ये महरूमी नहीं रहेगी कि वो कुरान पाक नहीं पढ़ सके। वालिदैन को भी फ़ख्र होगा जैसे मुझे अपने बच्चों पे फ़ख्र है। तो अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाब करे और अल्लाह पाक किसी के पीछे मेरे बच्चों को और ज़्यादा कामयाबियाँ दे। और जो मेरी बड़ी बेटी है जिसने इस राह पे इनको चलाया, उनको भी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। वो प्रदेश में बैठी है PhD करने के लिए, अल्लाह पाक को कामयाब करे और वापस आए खैर खैरियत से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग साहिबे हैसियत हैं, जो इस बात को मानने वाले हैं, वो इनसे रब्ता करें और अपने बच्चों का भी ख्याल करें और अपनी आखिरत का भी ख्याल करें। और इनसे रब्ता करके जो है वो स्पेशल बच्चे, वो बच्चे जो बोल नहीं सकते, उनको सिर्फ इशारों के साथ कुरान की तालीम दी जाती है। इसी सब ने मेज़बान फैज़ान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।